नहीं किया, उन्होंने मुझे कहा कि जाके लिंक चेक कर दे। चलो गलती से कभी और दिमाग सट आ जाए, सारा दिन तो एक ही लिंक पे काम करते रहते हैं ना। वो जब तक इधर से हो ना आप हो, है ना, वो उधर से शो नहीं करता। हाँ ओके, थैंक यू सो। So, Assalamu alaikum and very good evening to all of you. Hope you all are good and well and having, rest and enjoying with lectures, online lectures. Hope you learn a lot in a day. So make your reflections, what you have learned. So our topic was last time is the practice of teaching. We were talking about the teaching. We discussed concept of teaching in very detail. So the teaching learning process जो है इसमें हमने बहुत सारी बात की थी, हमने इसके concept को well understand किया था. That was the what was the concept about the educationist and psychologist about the teaching. So I put one questions in front of you that is the question rises that whether the teaching is mandatory for learning to take place. So, or is learning always depend on teachings? There is a two questions lie in front of you that you need to answer and make a validations for these two questions. The answer to these questions lie in the fact that teaching is not a must for learning to take place, and learning is not always depend on teaching. So these were the two questions in which we learn in the both situations. If both situations fall, then how we will understand better. So what is the actual concept? And in this slides, we learn a lot about this. So I told you people that teaching and learning both go hand in hand. There are two sides of the same coin. Mean, if we talk about the one coin of both part are equally important. So one is interrelated to another one. So teaching and learning has two fundamental aspects of educational process which are closely related to each others. Okay, fine. So concept of teaching is incomplete without learning. So what we learn from the whole slides is that it depend on the situation, it depend on the information, the way you want to share, and for the teaching is always not mandatory to lead learning. Sometimes we learn from different resources or different way, like from our home, from fellows, from the organization, from the every aspect, and from the observation as well. So it is not mandatory, but in academic, if we'll talk about the academic discipline, it is really mandatory to learn and to have a teaching to learn. So this concept is very clear already. फिर मैंने आपको आई टोल्ड यू डिफाइन द टर्म के इस टर्म को डिफाइन किया था, फिर हमने इसके दोनों साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके टीचिंग को जो है जो लर्न किया था, ये डेफिनेशंस थी हम जिसके बारे में हम सीखा था. फिर हमने इसके जो कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था कि जैसे इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट, you need to make it part and then you need to synthesize the whole concept as a teaching. So हमने इसको सीखा था कि ये planned activities है, tabular process है, interactive process है, motivation to learn है, as well as science भी है, communication and guidance है. ठीक है. Teacher who cannot keep student involved and excited for the several hours in the classroom should not be there. John Roach.
प्लान एक्टिविटी के बारे में हमने देखा था कि प्लान एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि उसमें जो टीचर जो वो रेगुलर मटेरियल प्लान करता है, वो रेगुलर मटेरियल को कलेक्ट करता है और उसको अच्छे से शेप देता है. विदाउट गुड प्लानिंग एम ऑफ द टीचिंग कैन नॉट बी अचीव. टाइप प्रोसेस इसलिए कि देयर इज अ 3 थिंग्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द क्लास. सो वन इज टीचर, सेकंड learner, third is content, and all that take place and then systematically and organized way and aiming to facilitate learning. Interactive process करें. Teaching stimulate interaction between the teachers and the learner in the context of curriculum, which will activate the student mentally and physically, resulting for effective learning. Motivations है, ठीक है. Art as well as हमने इस concept को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड किया था कि आर्ट एज वेल एज आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू टीचर क्या करता है, रॉ मटेरियल को डील करता है, उसको डिजाइन शेप देता है, ठीक है, और अपना आप जो है ट्रांसफर इन द मिरर हिमसेल्फ इन द टीचर. ठीक है, ये भी हमने देखा. तो उसके लिए क्या होना, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी सिस्टमेटिकली स्टडी होनी चाहिए, बैचलर एजुकेशन और मास्टर एजुकेशन, और ठीक है, और इस MSc BSc ये सारी एजुकेशन प्रोफेशनल उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है. ठीक है, फिर हमने इसके कम्युनिकेशंस की बात की थी, गाइडेंस की बात की थी. ठीक है, देयर आज हमने टाइप ऑफ मेरे ख्याल हमने कंडीशनिंग भी पढ़ रही था, डॉक्ट्रिनेशंस भी पढ़ लिया था. यस राइट, आई रिमेंबर, हमने पढ़ लिया था ना. कंडीशन डिपेंड करती है. यस आई रिमेंबर. कंडीशन है, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस एंड इंडोक्ट्रिनेशंस है. कंडीशंस में हमने बात की थी प्राइमरी स्कूल में वो किस तरीके से उनकी हैबिट को डेवलप करने में, उनके डिजायर शेप के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन डेवलप कर देते हैं ताकि वो लर्न कर सकें. और नर्सिंग में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्या होता है, नर्सिंग में प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए हम क्या करते हैं, टू रीशेप द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशन. सो दिस इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, ट्रेनिंग भी इसमें हमने बात की थी कि ट्रेनिंग के लिए जो है टाइप ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, दिस पर्पस ऑफ दिस टीचिंग टू शेप द कंडक्ट. इसमें हमने बच्चों के कंडक्ट को देखना होता है. ट्रेनिंग हम इसलिए करवाते हैं, स्टूडेंट को कंडक्टर स्किल्स इसलिए देते ताकि उनके डिज़ायर बिहेवियर को शेप दे सकें और उनकी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली टू द नर्सिंग स्टूडेंट. इंस्ट्रक्शंस पे हम देखा था कि हम कैसे करते हैं. ख़ास तौर पर मोस्टली हम इंस्ट्रक्शन जो यूज़ करते हैं वो हम ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट में ये जो मेथड यूज़ करते हैं. इट इन्वॉल्व इम्पार्टिंग द कम्युनिकेशन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट. टीचिंग ट्रेनिंग इज प्री रेक्विजिट फॉर द सक्सेस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी. टीचिंग स्ट्रेटेजी के लिए ट्रेनिंग जो है वो प्री रेक्विजिट है फॉर द सक्सेस. So this type of teaching should have a good reasoning capacity and in-depth thinking so that they can satisfy the need of higher level of the student. I have just quick review to stay on your to create your interest and I want to really keep you motivated and attentive in the class. Hope you enjoy. Indoctrinations where this type of teaching is required to teach PhD nurses. Student where the teacher is supposed to shape their belief of the nursing scholar. Indoctrination require the highest level of intelligence and reasoning capacity for the part of the teacher. इस तरह के जो टीचर्स होते हैं ना, जिसमें टीचिंग जो होती है, we need to have a higher level of intelligence. जैसे मैंने आपसे शेयर किया था, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था कि that if you want to if you want to be very intellectual and having a reasoning or logical capacity, you must have your higher level जो आपकी thinking है, that should be well working conditions में होनी चाहिए. आपको concentrate करना आना चाहिए, आपको evaluate synthesize करना चाहिए, आपको analyze करना आना चाहिए, आपको synthesize करना आना चाहिए और आपको evaluate करना आना चाहिए. Clear? So principle of teaching used in nursing education में हमने आज बात करनी कि इसमें कौन कौन से जो है प्रिंसिपल जो हैं हम वो इम्पोर्टेंट है. प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग, स्टिमुलेशन, एसोसिएशन, एक्सरसाइज ऑफ रिपीटेशंस, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, ग्रुप डायनामिक, क्रिएटिविटी एंड रिक्रिएशंस.
So principle of activity emphasizes that the student should be actively involved in teaching and learning process. Research has shown that if the student are actively active mentally and physically during the teaching session, the teacher will become more efficient and effective in the term of student learning. तो हमने देखा कि उसने कहा कि रिसर्च से साबित हुआ है कि जो स्टूडेंट क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, दे हैव द मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लर्निंग in the term of student learning. टीचिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट अटेंटिव होते हैं, दे गेन गुड अटेंशंस, और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं, इससे टीचर जो होता है वो इमीडिएटली एवेलुएट कर लेता है कि व्हाट इज़ द गैप इन द इंफॉर्मेशन. Teaching can be facilitated if the student actively participate in the learning process and learn while actually manipulating the things to be learned. तो टीचिंग जो है वो स्टूडेंट को एक्टिवली जो है पार्टिसिपेशन में जो फैसिलिटेशंस मिलती हैं इन द लर्निंग प्रोसेस एंड वाइल लर्निंग एक्चुअली मैनिपुलेटिंग द थिंग टू बी लर्न. जब वो बताएंगे, इंटरप्रेट करेंगे, बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या लर्न किया है. लर्निंग बाय डूइंग को हम पढ़ रहे थे. सो प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग की बात करेंगे तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग में ये है कि टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटीज एंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर द ड्राइवर ऑफ द एक्टिविटीज व्हिच कंट्रोल द डायरेक्शंस and the methodology of the teaching. Therefore, goal setting is a vital part for teaching. Any teaching without pre-planned learning goal or objective is useless and become flawed. I think we have done yesterday. Boys, remember this slide? मैं इस स्लाइड से मुझे याद आया कि वी हैव कवर्ड यस्टरडे फ्रॉम द एंड टुमारो लेक्चर आई विल रियली आस्क यू आई वाज वेयर आई लेफ्ट. समझ आ गया? ओके, ये हमने पढ़ लिया था. ये जो है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन. दिस प्रिंसिपल implies that the teaching should be stimulate the learner to think, to explore and to seek more information that will ensure the active involvement of the student in teaching learning process and lead to the better learning. ठीक है, स्टिमुलेशन जो होती है वो स्टूडेंट की क्या करती है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है इससे इंश्योर करती है कि स्टूडेंट आर एक्टिवली एंड मेंटली एंड फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास. Principle of associations, that is very, very important. I think we did not read this one. So principle of association highlight the importance of associations of related concept from the different section of the curriculum. ठीक है, हमने देखा है कि ये जो प्रिंसिपल एसोसिएशन जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि while teaching medical surgical nursing, a teacher has to associate the concept of pathophysiology and physiology. Like for example, आप सर्जिकल नर्सिंग को पढ़ाना चाहते हैं तो you must understand कि आपने सर्जरी तो पढ़ाई, लेकिन आपको पहले फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए, फिर आपको पैथोफिजियोलॉजी का पता होना चाहिए, फिर उसके अगर पैथो में कोई एबनॉर्मलिटी है या नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी है या फिजियोलॉजी उसकी वेल फंक्शनिंग है, जो पैथोलॉजिकल कोई कॉज है, तो फिर ये मेडिकल सर्जिकल अंडरस्टैंड कर सकोगे ना. तो इसलिए जैसे आप क्या पढ़ते हो, F1 पढ़ते हो तो उसके साथ हेल्थ असेसमेंट भी पढ़ते हो, एनाटॉमी भी पढ़ते हो. डैट क्या है, एसोसिएशंस लर्निंग है, यानी कि हम एक चीज़ को लर्निंग करने के लिए उसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड करते हैं. समझ? सो हमने इस कॉन्सेप्ट का देखा कि प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशंस हमेशा जो है डिफरेंट सेक्शन हम करिकुलम में बहुत सारे, जैसे बिहेवियरल साइंसेज है, ठीक है, बिहेवियरल साइंसेज के अंदर बहुत सारे. अब हम क्यों पढ़ते हैं नर्सिंग के लिए, बिकॉज दे आर इंटररिलेटेड एसोसिएटेड विद दिस थिंग, दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट दिस. द association of concepts should be gradual and continuous that can lead to the integrated learning, better understanding. प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज और रिपीटेशन है, इसका क्या, ये प्रिंसिपल क्यों इम्पोर्टेंट है. दिस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग फोकस ऑन द नीड ऑफ एक्सरसाइजेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टॉट बाय टीचर.
ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है टीचिंग जो फोकस करता है, नीड ऑफ एक्सरसाइज की बात करता है, सब्जेक्ट मैटर टॉट बाय टीचर, जो टीचर ने बताया होता है, पढ़ाया होता है, एट द एंड ऑफ द टीचिंग द टीचर शुड असाइन सम एक्टिविटीज असाइनमेंट टू द स्टूडेंट दैट विल प्रूव टू बी अ बेटर हेल्पफुल फॉर द बेटर रिटेंशन ऑफ द लर्निंग। मीन कि अगर हम पढ़ाने के बाद अपने स्टूडेंट को थोड़ा टॉपिक असाइन कर देते हैं तो स्टूडेंट क्या होते हैं, इसको वो पढ़ते हैं, रिपीटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एंड दे हैव अ बेटर रिटेंशन। ये उसको बहुत अच्छी उनको रिटेंशन होती है। टीचिंग शुड बी रिपीटेड एज व्हेन द रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट लर्न द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। इसमें हम देखते हैं कि जैसे जो है रिपीटेड क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि पास का ज़रूरी नहीं कि हर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई रिपीटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Feedback and reinforcement. This principle of the teaching focuses on the immediate feedback and reinforcement to the learner about the learning. Feedback and reinforcement act as the boost of learning. Feedback and reinforcement. It's very mandatory for learning perspective, because if you will take your feedback and give the student feedback, so it will be really fulfill the gap. इससे गैप फुलफिल होते हैं, आपको आपकी जो डेफिशिएंसी ओवरकम करते हैं, आप डेफिशिएंसी को भी ओवरकम करते हैं। थैंक यू सो मच एमन, गॉड ब्लेस यू। Hope I will teach you very effective, that you will able to learn, because teacher is not only teaching the content, teacher is mirror himself or herself in the student. So because as a mirror, if I will see my reflection in my students, so that I can see my students, I really want to put myself in the student. मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेरे पास है, जो मैं जो मेरे पास जो मेरी तैयारी है, जो आपको पढ़ा रही हूँ, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है। If you will really be lively in the class, you will see I will really share with you so many examples, and I will really give you a very important message according to the topic. I can share you so many things with you, so maybe you have a better learning, because here we are limited time, and sometimes because it's the audio visual, so that's why sometimes we are speaking carefully. पता नहीं कौन क्या किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है, तो इसलिए हम रेलिवेंट बात करते हैं। क्लास में तो हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेशन होता रहता है, स्टूडेंट्स भी बात करते हैं, टीचर भी बात करता है। सो मेरा जो ख्याल है, जो मेरा ओपिनियन है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा लर्न करते हैं, लेकिन फिर भी चलें, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आपने हमेशा अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है। दिस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन इमीडिएट फीडबैक, reinforcement to the learner about the learning. Feedback and reinforcement act as boost to learning. इसका मतलब है कि जब आप reinforcement, मैंने उस दिन भी बताया था कि reinforcement क्या होता है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। आपने पैवलॉव की थ्योरी में देखा, उसमें reinforcement का यूज़ किया हुआ है। जितनी भी थ्योरीज हैं आपने देखा है, ये साइकोलॉजी की थ्योरी है जिसमें reinforcement का जो है वो बड़ा थ्योरी दी गई है। उसने कहा कि अगर पॉजिटिव reinforcement दोगे तो क्या होगा। देखिए, हम पढ़ नर्सिंग है, लेकिन हम साइकोलॉजी की थ्योरी को भी पढ़ रहे हैं। जैसे आज मैंने थ्योरी को बताया था, तो मैंने उनसे कहा था कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, इसकी एसोसिएशंस होती है हमेशा। एसोसिएशंस, अब कुछ कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं अपने नर्सिंग के हैं, कुछ कंसेप्ट जो अदर डिसिप्लिन्स के हैं, तो जब हम इनको क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो वो हमें इसे कंबाइन करना है, इसलिए इसको सेट ऑफ क्या कहते हैं, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं कि डिफरेंट सेट है, जिसमें डेफिनेशन, रिलेशनशिप, प्रपोजिशन, स्टेटमेंट, ठीक है, और ओपिनियन, अजम्पशंस, ये सारी चीज़ें मिलकर एक थ्योरी को फॉर्म करती हैं। जब हम अपने आइडियाज़ और ओपिनियन देते हैं, ठीक है, हमारे मेंटल पिक्चर्स में जो आइडिया और ओपिनियन होते हैं, ठीक है, फिर हम उसको डिज़ायर शेप देते हैं। डिज़ायर शेप देने का मतलब ये है कि हम उसको अपनी स्टेटमेंट बना लेते हैं। प्रपोजिशन और आइडिया को हम स्टेटमेंट बनाते हैं, हमको साइंटिफिकली थ्रू द डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के जरिए जो हम क्या करते हैं, उस थ्योरी को प्रूव करते हैं, फिर हम उस मॉडल और इस थ्योरी को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन द इमीडिएट फीडबैक एंड reinforcement to the learner about the learning. Feedback and reinforcement act as boost to learning. सो मैंने जैसे बात करी थी, reinforcement हमारे बीच में लगे, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव होती है कि जब हम डिज़ायरेबल बिहेवियर को हमने प्रमोट करना होता है तो हम पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ने नेगेटिव बिहेवियर को स्टॉप कर रहे हैं, यानी कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को स्टॉप करना है, देन वी
If we want to stop our undesirable behavior, then we will use negative reinforcement by verbal भी कह सकते हैं, by किसी भी तरीके, लेकिन पॉजिटिव में हम कहते हैं रिवार्ड कर सकते हैं, रिवार्ड दे सकते हैं उनको कोई और उनको अप्रिसिएशन दे सकते हैं। जैसे क्लास में कोई बच्चा अच्छा बता रहा होता तो हम क्या उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे होते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे को मोटिवेट करने के लिए एंड कीप ऑन ट्रैक एंड फॉर द मोटिवेशंस एंड फॉर द स्टूडेंट भी इससे सेटिस्फैक्शन और हैप्पी होते हैं और उनका जो इंटरेस्ट डेवलप होता है, दैट हेल्प टू रिटेन द रिटेंशन फॉर लर्निंग, तो वो उन पर लॉन्ग लास्टिंग उनकी लर्निंग हो जाती है। सो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक इज इम्पोर्टेंट वाइल टीचिंग इन अ स्मॉल ग्रुप और बाय ग्रुप डिस्कशंस मेथड। ये ग्रुप डायनामिक हम जो यूज करते हैं ना मेथड, प्रिंसिपल हम क्यों यूज करते हैं? स्मॉल ग्रुप के लिए और बाय द ग्रुप डिस्कशंस के लिए। Teacher must utilize the principle of group dynamic and group forming strategy to make the discussion organized and fruitful. हम ये प्रिंसिपल भी यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, स्मॉल ग्रुप बना देते हैं और उनको कहते हैं कि डिस्कस विद ईच अदर्स, अपने अपने ओपिनियन और अपनी अपनी राय दें, ठीक है, एक दूसरे से लर्न करें। दैट इज आल्सो वी कैन यूज दिस स्ट्रेटजी इन आवर क्लासरूम फॉर टू टीचिंग फॉर द बेटर लर्निंग, ठीक है। So teachers utilize the principle of group dynamic and group forming strategy to make the discussion organized and fruitful. A principle of activity and recreation, why it is important? ये इसलिए important है, an idea teaching must not be mind numbing to the students. कि उसने एक आइडिया के टीचिंग के बारे में एक आइडिया दिया है कि टीचिंग जो है माइंड नंबिंग नहीं होनी चाहिए कि आप ऐसा पता नहीं क्या बढ़ा रहे हो कि आपका माइंड ही सुन हो रहा है, यू कैन नॉट एबल टू रिटेन, ठीक है, आप उसको रिटेन ही नहीं कर सकते, आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे कि क्या बोला जा रहा है, क्या समझा जा रहा है, ठीक है। तो माइंड नंबिंग नहीं, माइंड को सुन करने वाली नहीं, यानी कि लाइक आपने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया है तो लाइक यू आर पुट द हैमर ऑन द हेड ऑफ समवन, कि आप किसी के सर पर थोड़ा ही मार रहे हो, ठीक है। So always I will teach you a different strategy you can use in the classroom teaching. Classroom teaching में आप बहुत सारी strategy को use कर सकते हो। When the teacher feel that the student are getting bored during the lecture, he or she should stimulate the student by brief रिक्रिएशनल एक्टिविटी। तो वो छोटी छोटी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, थोड़ा सा मजाक कर लिया स्टूडेंट से, थोड़ी हंसी मजाक कर लिया, ठीक है, उनको कोई फन क्रिएट, बच्चे अक्सर आपने देखा तो वैसे ही हमारे बच्चे बड़े बड़े फनी है, वो ऑलरेडी बड़ा फन क्रिएट करते हैं, छोटी सी बात हो तो खुद से वो हंसना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है। ही शुड यूज क्रिएटिव वे ऑफ टीचिंग फॉर दोज लेसन इन विच द स्टूडेंट्स आर लाइकली टू गेट बोर्ड, जिसमें वो बोर्ड हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये वाकई कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें छोटे छोटे इसने फन और इसमें कोई जो है इस तरह के हम आइडिया शेयर कर सकते हैं, या कोई भी जिसमें आप थोड़ा सा जो है अपने माइंड को जो फ्रेश कर सके। एट द सेम टाइम द गुड टीचिंग शुड स्टिमुलेट द क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट दैट इज सेटिस्फाइड टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। सो एवरी ट्रूथ हैज द 4 कॉर्नर, हर सच्चाई के कितने कॉर्नर? 4 कॉर्नर है। एज अ टीचर आई गिव यू 1 corner and it is for you to find another 3, ठीक है। मैं एज ए टीचर आपको एक चीज बता रही हूँ, यू नीड टू फाइंड अनदर 3, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल फॉर द बेटर लर्निंग। मैंने आपको पता नहीं कहाँ से कितनी चीजों से आपको ये एक कॉर्नर जो बता रही हूँ, ठीक है। सो यू नीड टू सर्च अनदर 3 कॉर्नर एज वेल, मीन टू आपने इसको ज्यादा से ज्यादा इसको डिटेल में स्टडी करना है। अब हम बात करेंगे इस खूबसूरत वे की, जो टीचिंग के वेज हैं। एक तो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड और दूसरा है इम्प्रूव टीचिंग मेथड। तो इसमें हम जो बात करेंगे इंडक्टिव की, इंडक्टिव जो है इसमें क्या बात करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, और एक में है स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। डिडक्टिव जो होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, और ये जो इंडक्टिव है स्पेसिफिक टू जनरल होता है, ठीक है। हमने ये दोनों मेथड हम पहले यूज करते थे जो ट्रेडिशनल थे, ठीक है। किसी चीज को देखा है आपने, एक स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक होता है, उसकी एक डेफिनेशंस होती है, डेफिनेशंस के अंदर होल टाइटल को एक डेफिनेशन है ना होल्ड किया होता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। जैसे आपने देखा कभी कोई आर्टिकल देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है, वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक चीज होती है ना। लेकिन जर्नलाइजिंग में क्या होता है, उसको फर्दर हम एक्सप्लोर करते। एक होता है कि हमने जर्नलाइज चीजें ले ली, डाटा ले लिया, अब उसको हमने कॉन्सेप्चुलाइज करके आपने उसको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उसको चीज को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव कहते हैं। टाइप स्टडी मेथड,
ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड हम यूज करते थे, लेबोरेटरी मेथड यूज कर, क्वेश्चन आंसर और सोक्रेटिक मेथड, ये टीचिंग इसको ही कहते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग को अनदर टर्म है, इसके लिए यूज करते हैं। लेक्चर मेथड यूज करते हैं। अब आपने देखा कि लेक्चर की बात करो तो लेक्चर मेथड इज आउटडेटेड नाउ बिकॉज द मोस्टली one of the research shows that even the physicians and the medical profession, they are not even the expert how to deliver the effective lectures. But for the effective lectures, lecture is not a itself a bad method, but the strategy you are using, that is if you are not having a creativity and interactions, that lecture is really not and preferred good method. So lectures अच्छा है आप, लेकिन once we make it interactive one. So improve teaching method में इंटीग्रेटिव टेक्निक्स हैं, जिसमें हम बहुत सारी, आपको पता है इंटीग्रेटिव टेक्निक के सिर्फ पढ़ा रहे थे। डिस्कवरी अप्रोच है, प्रोसेस अप्रोच है, कंसेप्चुअल अप्रोच है, मास्टरी प्लानिंग है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, और केस बेस्ड टीचिंग है, कंसेप्चुअल टीचिंग है, कोऑपरेटिव टीचिंग है। इसके फर्दर जो आपकी स्लाइड्स मिल जाएंगी तो आपने इसको फर्दर आपने इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ेंगे मैक्सिमस ऑफ टीचिंग। मैक्सिमस ऑफ टीचिंग जो है, proceed from the known to unknown, proceed from simple to complex, proceed from easy to difficult, proceed from the concrete to abstract, ठीक है। कंक्रीट जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, मैक्सिमस जो है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलना है, और क्या करना है, प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, जो हमने पढ़ा था इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, प्रोसीड फ्रॉम द इंडेफिनिट टू डेफिनिट, proceed from the empirical to rational, proceed from the physical to logical, psychological to logical, proceed from the whole to part, from an analysis to synthesize. मैंने आपको पीछे भी पढ़ा था कि एनालिसिस क्या करना होता है, सिंथेसाइज क्या करना होता है। जैसे हमने टीचिंग के कॉन्सेप्ट को हमने एनालिसिस करके फिर उसको सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से होल टीचिंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। तो एनालिसिस का मतलब होता है मेक अंडरस्टैंडिंग इन अ पार्ट, then synthesize, to make it as a whole concept. From actual to representative, proceed from the inductive to deductions. So no man can be a good teacher unless he has feeling of warm affections toward his pupil and a genuine desire to impart to them what he himself believed to be a value. ठीक है, Bertrand Russells, ठीक है, that is the quotation from the Bertrand रसल्स की है ये। मैं आगे इसके साथ जितने जो मैंने मैक्सिमस बताए हैं आई विल डिस्कस वन बाय वन। यस, whenever we proceed from known to unknown, we may hope to understand, but we may have to learn at the same time a new meaning of the word understanding, ठीक है। दिस इज द वर्नर्स, क्या इसका नाम है, हिजनबर्ग। So proceed from known to unknown. This maxims of teaching emphasizes that new knowledge cannot be grasped in isolation. Therefore, teacher should proceed from previously familiarized concept known to those information or knowledge that is new for the student. ठीक है, कि जब भी आपका जो फोकस इस टीचिंग का जो फोकस है, जो इम्फोसिस है, क्या नॉलेज कैन नॉट बी ग्रैप्स इन आइसोलेशन। कभी भी हम आइसोलेशन में किसी एक स्ट्रैटेजीज को नहीं सीख सकते। जैसे मैं कहूँगी ये नर्सिंग है, तो नर्सिंग में है क्या, इट्स रिलेटेड सो मेनी थिंग्स, ठीक है। नर्सिंग में अगर बात करें, फॉर टीचर शुड बी प्रोसीड फ्रॉम द प्रीवियस फेमिलराइज्ड कॉन्सेप्ट। जैसे मैं अगर आपको पढ़ाऊंगी, मैं कहूँगी जी पहले आपको पता है कि टीचिंग क्या होती है, मे बी यू हैव गिव मी द राइट आंसर कि टीचिंग क्या होती है, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस एंड यूज टू इट, टू दोज इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दैट इज न्यू टू द स्टूडेंट। फिर आपने उस तरफ मूव होना जो स्टूडेंट्स को के लिए अननोन है। अननोन पहले अपने नॉन स्टूडेंट से पूछना कि आर दे फेमिलियर, आपने उन चीज़ों को साथ लेके चलना, पहले उनको फेमिलियर चीज़ें बतानी, फिर आपने अनफेमिलियर की तरफ लीड करना है, ताकि ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसी अमेजिंग स्टोरीज बता रहे हो कि ये होता है ये होता। ऑलवेज गो फ्रॉम द नॉन टू अननोन। स्टूडेंट से पूछें, ऑडियंस से पूछें, लर्नर से पूछें कि what are you know about that? Yes, put your share your mind step by step with them so that you can relate your mind with their mind,
ठीक है, आपने अपना माइंड जो है अपने ऑडियंस के साथ आपने रिलेट करना है, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमस, फर्स्ट मैक्सिमस ऑफ द टीचिंग, बिकॉज आपने पहले नॉन टू अननोन एरिया की तरफ मूव होना है। What students already know about a subject matter can use to arouse interest in a lesson by probing question related to that area। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टूडेंट ऑलरेडी क्या जानते हैं उसके बारे में आपने उनका इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, अरोज करने के लिए आपने क्वेश्चन पूछना है related to that area, उससे related अपने क्वेश्चन पूछना है। The teacher then should proceed gradually step by step to connect the new information to the old one, ठीक है। For example, while explaining the hyperthermia, अब मैं बात करूं कि हाइपरथर्मिया में बात करती जा रही हूँ, लेकिन जबकि पता नहीं बच्चों को नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है ना। सो इस तरीके से while explaining the terms hyperthermia, the teacher should probe question what is the normal temperature of the body। ओके, द प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करेंगे सिंपल है, हमने क्या किया था, नॉन टू अननोन। नाउ we'll talk about first simple concept. Simple concept should be taught first, followed by the complex concept. It will ease the learning process as well as stimulate the student to explore the complex concept if they have already learned the simple one। सबसे पहले आप simple को बताएंगे, फिर हम आप complex की तरफ जाएंगे। So for the easy understanding, proceed from easy to difficult, ठीक है। मीन पहले आपने नॉन टू अननोन, दूसरा क्या था, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और थर्ड है इजी टू डिफिकल्ट। इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज इजी एंड व्हाट इज डिफिकल्ट, वी have to take into account the psychological makeup of the nursing students। ये आपके लिए बहुत important है, उनका psychological makeup करने के लिए, उनका mindset करने के लिए। A particular nursing skill may be easy if it is seen for the logical point of view। However, psychological जो है it may be a difficult for the student। हो सकता है ज़हनी तौर पर उनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपने क्या करना है, you need to, I will share with you example। So therefore the teacher has to judge first what is the psychological difficulty for the student and then proceed for the from easy skills to difficult one। For example, teaching basic nursing skill first and then proceed to the advanced skills। ठीक है, समझ आ गई। बेसिक स्किल बताओगे तो एडवांस स्किल उसको समझ आ गई। जैसे BLS का पता होगा तो ALS का पता चल जाएगा, ठीक है। फिजियोलॉजी का पता होगा तो फिजियोलॉजी का पता चल जाएगा। एनाटॉमी होगी तो फिजियोलॉजी उसका फंक्शन भी पता चल जाएंगे, ठीक है। सो आपने हमेशा इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाना है। टीचिंग बेसिक लाइफ सपोर्ट फर्स्ट एंड देन एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट। Proceed from the concrete to abstract। This is a particular important maximus of the teaching for the nursery and primary school student। ये जो concrete और abstract वाला है कि सबसे पहले हम हमेशा बच्चों को क्या कहते हैं, कुछ चीज़ दिखाते हैं, फिर उसके बारे में समझाते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको हार्ट का मॉडल दिखा दूँ कि ये हार्ट है, ठीक है, तो ये क्या है, कंक्रीट है, लेकिन उसके बारे में बता दूं तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो फिर ही आप उसके फंक्शन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। जब तक हम कोई चीज़ किसी को फिजिकली दिखाएंगे नहीं, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। दिस इज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मैक्सिमस ऑफ द टीचिंग फॉर द नर्सरी और प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। हाउएवर
It can also be utilized to teach nursing student. It is highlighted that a teacher should first use concrete material to stimulate learning among student, as it's easy to learn with the help of concrete material. There after he or she should proceed the abstract descriptions of the content. For example, show the model of the heart first, as I told you, and then proceed explanatory anatomy of the heart, that it would be very easy from concrete to abstract. From particular to general, ठीक है. Teaching should proceed from the particular specific fact to the general. जैसे मैंने inductive और deductive बताया था, it is easy to understand the things for the student if the specific fact precede the general fact, and student of study of a particular or specific fact should lead the student themselves to frame general rule. Indefinite to definite कैसे करना है हम? टाइम बहुत हो गया, मेरी अटेंडेंस ना रह जाए. Teaching should proceed much unclear, vague, and blurred fact to more clear and definite fact or information. These vague or indefinite idea will create a platform on which explicit, clear-cut, or exact informations can be presented that will be easy grasped by the student. ठीक है, तो आपने पहले जो उनकी एम्बिग्यूटी है, जो उनमें जो अनक्लियर जो है, इनडेफिनेट से अपने डेफिनेट की तरफ आना. पहले उनसे पूछना, अगर उनके जो अनक्लियर कॉन्सेप्ट है, यू मेक इट इन फॉर्म ऑफ डेफिनेट. ओके. प्राणिका मोटी हो जाएगी, है ना, हो जाना. सेहत का ख्याल रखना, इतनी दुबली पतली मत नजर आना. ओह, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. कौन सा एम्पेरिकल टू रैशनल है, लॉजिकल टू साइकोलॉजिकल है, होल टू पार्ट है, और क्या है, एनालिसिस सिंथेसिस है. Too much. Okay, we will talk later. We will start from the. Remember, I would like to ask you in the next class where we left. I told you, if anyone will not tell me, I will punish you. Okay. हमने बात की थी indefinite to definite. ठीक है ना, हमने definite to definite बात की थी. अब हम बात करेंगे empirical to rational. ठीक है. Stay with me while I'm having attendance.